Good afternoon. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Draw the state space tree for finding all the subsets of the set 15, 20, 10, and 5. And what is the time complexity for finding all subsets and space complexity also? Time 10 minutes. And after finished, you send me. Okay, to start now. Draw the state space tree and time complexity and space complexity.
हो गया? सर जो Yes, sir. कॉम्प्लेक्सिटी किसे निकाले? भेजो देखते हैं। सर वो ट्री भेजना है सर. हम्म What is the time complexity? So big of number of vertex plus number of edges sides. Anjali, what is the time complexity for this problem? बोलो टाइम कॉम्प्लेक्स क्या होगा? Sir, I don't know. टाइम टाइम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि तुम कितने बार एक एक सबसेट कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? मतलब देखो 15, 20, 10 and 5 you are using notation x1, x2, this for x3, this is x4. First x1 equal to 0, x1 equal to 1 and x1 equal to 0. Then x2 equal to 1, then x3 equal to 1, then x4 equal to 1. This is your one answer. 15, 20, 10 and 5. This x4 equal to 0. So another answer. Then x3 equal to 0. x4 equal to 1 and x4 equal to 0. So 4 answer. Then x2 equal to 0. Then x3 equal to 1, x4 equal to 1, and right side is x4 equal to 0. Back x3 equal to 0,
x4 equal to 1, right side is x4 equal to back simulate for x1 equal to 0. So these are the 8 solution 1 2 1 2 3 for right side also 8 solution, total 16 solution. The 16 solution, that means 2 power 4, 2 power 4. So for 4 elements, the total solutions are 2 power 4, that means 16. So 16 times you have to traverse the path. So total 16 paths are there. That means the time complexity for n number is big of 2 power n, क्योंकि ना टोटल कितना सबसेट्स है, 2 power n सबसेट्स है, तो 2 power n टाइम्स तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो big of 2 power n, the time complexity for this x1 x2 dot xn, time complexity for finding all the subsets of this set is big of 2 power n. So that is exponential time. But what about space complexity? Space complexity. Space complexity. Well, space complexity क्या होगा? अच्छा, it is clear. Sir, Why it is big of 2 power n? बोलो. कपन तुम्हारा ये आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. sir, time complexity देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2 पावर n क्यू, तो टोटल सबसेट कितना होगा 2 पावर n, तो टोटल कितने बार तुम्हें पाथ ट्रैवर्स करना पड़ेगा? 16 पाथ फॉर 4 एलिमेंट्स, यस और नो? Total 16 path, 1 path, then 2 times, then 3 times, for this one 4 times, like this total for 4 elements, they have to traverse to get the subset of the set is 16 times. So that is for 4 elements. And so the for n elements, it will take 2 power n, that means big of 2 power n, that is exponential time. It's simple. Somewhere. सर तो यस सारे सर, स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए. यस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो रहा है? तो बैकट्रैकिंग इज रिकर्सिव कॉल. तो रिकर्सिव कॉल यूज करके तुम बैकट्रैक कर सकते हो. अच्छा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्स तुम कैसे देखोगे? इसका स्पेस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? देखो, only 4 elements are there, x1 x2 x3 and x4. ठीक है, फर्स्ट एक स्टैक यूज करें, क्योंकि रिकर्सिव कॉल में स्टैक यूज होता है. फर्स्ट x1 equal to 1, x1 equal to 1, x equal to 1, then x2 equal to 1, x2 equal to 1, then x3 equal to 1, so x3 equal to 1, then x4 equal to 1, x4 equal to 1. Okay, it's complete. 4 elements, so you will get the answer is 15, 15, 20, 10,
5, ठीक है। तो टोटल कितना स्पेस लगा इस रिकर्सिव कॉल के लिए? 1 2 3 4, ओके। देन बैक टू द प्रीवियस पोजीशन तो पॉप इट आउट, x for equal to 1, पॉप कर लो। तो बैक करना पड़ेगा, बैक करके तुम कहाँ पे जाओगे? x for equal to x for equal to 0, तो x for equal to 0, x for equal to 0. Again answer is 1 1 1 0, that means 15 20 10 5, ठीक है। बैक करो, बैक करके कहाँ पे जाओगे? x for equal to 0, पॉप, क्योंकि बैक करके तुम इस पोजीशन में आए। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? इस पोजीशन फिर से बैक करना पड़ेगा मुझे, तो बैक मीन्स x equal to 1, पॉप। देन x equal to 0, here x equal to 0, and x for equal to 1, x for equal to 1, again answer 1 1 0 1, so 1 1 15 25। तो बोलो एक एक आंसर जब कैलकुलेट हो रहा है तो कितना स्पेस का लग रहा है? कुछ आप 4 एलिमेंट के लिए सिर्फ 4 स्पेस मेमोरी में, 1 2 3 4, ठीक है। तो n एलिमेंट्स के लिए कितना होगा? n एलिमेंट्स के लिए n टाइम्स n n times स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलो कितना होगा? big of number vertex. number of vertex, number of elements, big of number of elements. And what is the depth? What is the depth of this state space tree? n n, ठीक है, और height of the tree is n. But space complexity big of n and time complexity is big of 2 power n. So that is called state space tree. अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा बैक ट्रैकिंग फॉर ऑल सबसेट्स। सर हाँ बोलो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक बार थोड़ा बताइए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यस सर। अच्छा देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फास्ट, ये जो फर्स्ट आंसर जब मिला तुम्हें, फर्स्ट सबसेट 15 20 10 एंड 5, इसको ट्रैक करने के लिए टोटल कितना स्पेस का जरूरत पड़ा था? 4 स्पेस। x1 equal to 1, x2 equal to 1, then x3 equal to 1, x4 equal to 1। उसके बाद क्योंकि ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 15 20 10 एंड 5। तो आंसर मिलने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक करना पड़ेगा। जब तुम बैक कर रहे हो x4 equal to 1, बैक करके प्रीवियस पोजीशन में आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉप होगा, स्टैक से पॉप हो जाएगा x4 equal to 1, ठीक है। तो x4 equal to 1 पॉप हो जाने के बाद फिर से तुम क्या ट्रेस कर रहे हो? x4 equal to 0, यू आर इंक्लूडिंग x4 equal to 0। तो x4 equal to 0 जब तुम इंक्लूड कर रहे हो तो दैट मींस यहाँ पे एक स्पेस क्या होगा? इंक्रीज होगा x4 equal to 0। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो x4 equal to 0, तो एक एक पाथ जब तुम ट्रेवर्स कर रहे हो, देखो 4 एलिमेंट्स था इसलिए 4 स्पेस को जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि तुम बार बार पॉप कर रहे हो, फिर से इन कर रहे हो, आउट हो रहा हो, इन आउट ऐसे कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? मैक्सिमम 4 स्पेस मेमोरी में स्टैक में कितना लग रहा है? 4 मेमोरी में जरूरत पड़ रहा है। तो n एलिमेंट्स के लिए कितना होगा? n एलिमेंट्स n मेमोरी, तो स्पेस कंप्लीट क्या हो रहा है? बिग ऑफ n, ठीक है।
नेक्स्ट तो स्टेट स्पेस ट्री फॉर द ऑल सबसेट्स। अच्छा, जैसे कोड क्या होता है, जो बैक ट्रैकिंग के लिए कोड होता है, स्कीना बुक, स्कीना स्कीना एक्चुअली तुम लोग रेफर किया गया था फर्स्ट क्लास में। So पेज नंबर 230, बैक ट्रैकिंग का 231। अच्छा, ये जो स्केलेटन है, ये बैक ट्रैकिंग का मेन कोड है। would finish equal to false, backtrack in a of array, this is array integer type, in k int data, this int data, ठीक है, int data or int input, int c of x max candidate, this is an array in n candidates, in I, if is a solution ak input, then process solution will be executed, else k equal to k plus 1, and construct candidate ak input c and n candidates for I equal to 0 to I less than candidate I plus plus, and then this one, a of k equal to c of I, make move backtrack unmake move, ये क्या है यहाँ पे जब तुम स्टेट स्पेस ट्री बना रहे थे, स्टेट स्पेस ट्री आंसर क्वेश्चन क्या है, 10 15 20 से स्टेट स्पेस ट्री और ऑल सबसेट्स फाइंड कर रहे थे, x1 equal to 1, that means first element included, then x2 equal to 1, x2 equal to 1, then x3 equal to, अच्छा ये कब तक करते जाऊंगा मैं, x1 equal to 1, x2 equal to 1, then again x3 equal to 1, कब तक, सर x4 तक। ये 4 पूरा तक। एलिमेंट है अपना तो। हाँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब सेट के अंदर जितना है उतना ही, मतलब एक एक तुम इंडेक्स यूज करो, इंडेक्स मान लो k का वैल्यू k equal to here for this level is k equal to 1, here k equal to 2, then one element including, when you are including one element, then increment k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3, then up to when if k equal to n, then what you will do, if k equal to n, जब k equal to n हो गया उसके बाद तुम क्या करते हो, मतलब जब टोटल नंबर ऑफ ये कितना बार तुम करोगे, x इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 1, ऐसे करते करते जब तुम x4 इक्वल टू 1, x4 इक्वल टू 1, x4 इक्वल टू, उसके बाद तुम क्या करोगे, क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा आंसर, एक सबसेट, समझ में आ रहा है, so k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3, k equal to 4, that means if k equal to n, that means n equal to 4, then 10, your answer is 10, 15, 25, ठीक है, 25, this is your answer, that means if k equal to n, then print or count that this is your answer. If not, that means if k not equal to n, if go further, yes or no, देखो जब एक k equal to 1 तो क्या कर बिना k not equal to n, जब k not equal to n, then तुम नेक्स्ट एलिमेंट को तुम सर्च कर रहे हो,
देन नेक्स्ट एलिमेंट सर्च करते करते जा रहे हो। तो कब तक जाओगे? जब तक ना के इक्वल टू n। अच्छा, प्रीवियस जब तुम बैक कर रहे हो, यहाँ तक के का वैल्यू कितना है? 3। प्रीवियस के इक्वल टू 3, हियर के इक्वल टू 3 एंड दिस इज के इक्वल टू 4, दिस इज के इक्वल टू 4। इस लेवल तो के इक्वल टू 3, जब के इक्वल टू 3 इसका मतलब यहाँ तक ये जो पार्ट है, यहाँ तक जो पार्ट है ये तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं है। तो तुम क्या करोगे? x4 इक्वल टू 0। जब x4 इक्वल टू 0 कर रहे हो तो k इक्वल टू 3 था, अभी क्या हो गया? k इक्वल टू 4। जब k इक्वल टू 4 हो गया तुम्हारा एक आंसर आ रहा है। आंसर क्या होगा? 10 10 15 20। यहाँ पे देखो एकदम सेम प्रोसीजर से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखो इफ इजी सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन के अंदर एक फंक्शन यूज हो रहा है, इस बैकट्रैक जो प्रोसीजर तुम फॉलो कर रहे हो फंक्शन। इफ इजी फंक्शन और इजी सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन हो रहा है, इफ इजी सॉल्यूशन मतलब क्या है? इफ के इक्वल टू n, तो ये क्या सॉल्यूशन है क्या? नहीं। इफ के इक्वल टू n, then process solution means it will give you the all solution. Okay, so process solution. So later I will see that what is the definition of this function. Okay, so if it is solution, then process solution. If not, if it is not solution, then k equal to k plus 1. जो k equal to k plus 1 इसका मतलब क्या हो रहा है? जो मैं फर्स्ट क्या हो रहा था? x1 इक्वल फॉर 4 एलिमेंट के लिए, ठीक है, x1 इक्वल टू 1, इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा? k इक्वल टू 1। सो इफ इज सॉल्यूशन नो, तो प्रोसेस सॉल्यूशन नहीं हो, कहां पे जाऊंगा मैं? k इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जाऊंगा। k इक्वल टू k प्लस 1 मींस x2 इक्वल टू 1, दैट मींस k इक्वल टू 2। जब k इक्वल टू हो रहा है, मैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मैं चेक करूंगा, दैट मींस कांस्टेंट कैंडिडेट। जो कांस्टेंट कैंडिडेट मतलब नेक्स्ट एलिमेंट लेकर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसे करते जाऊंगा। जब इजी सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा, देन प्रोसेस सॉल्यूशन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देखो यहाँ पे टोटल one function, each solution is a function, 1 2 3, so 3 function are there and backtrack itself 4. Okay, so make move and unmake move ये सिर्फ सुडोकू और एन प्रॉब्लम के लिए यूज होगा। तो बाकी सब प्रॉब्लम के लिए मैं मेक मूव एंड अनमेक मूव ये जो लाइन ये मैं ओमिट करूंगा, रिमूव करूंगा, ठीक है, नहीं लिखूंगा। तो सिर्फ 3 फंक्शन, एक इजी सॉल्यूशन फंक्शन, प्रोसेस सॉल्यूशन फंक्शन एंड कांस्टेंट कैंडिडेट, ये 3 फंक्शन मैं यूज करूंगा यूजिंग द डेफिनेशन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ई बेस क्लियर डाउन है। अभी इसी को तुम्हें जस्ट डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और लाइन बाय लाइन एज इट इज जो है सब कुछ तुम सी प्लस प्लस या जावा कोई भी एक लैंग्वेज में तुम लिखो, लाइन बाय लाइन जस्ट कॉपी पेस्ट करो और थोड़ा सा एरर कहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेना, तो उसके बाद देखना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो और 3 फंक्शन, एक फंक्शन है इजी सॉल्यूशन फंक्शन, प्रोसेस सॉल्यूशन एंड कांस्टेंट कैंडिडेट, ठीक है। 3 सॉल्यूशन देखो 3 क्या हो रहा है। इस पर कंस्ट्रक्टिंग ऑल सबसेट्स, constructing all subsets. So first solution, first function, definition of function is a solution. If k equal to n, then return true. ठीक है, return true means इज अगर k equal to n हो गया तो प्रोसेस सॉल्यूशन में काम करूंगा। प्रोसेस सॉल्यूशन क्या है? प्रिंट, जहां पे प्रिंट होगा। देखो फॉर i equal to 1 to k, if f I equal to true, मैं वहां पे क्या लिख रहा था? देखो तो x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 ऐसे करके क्या था हम लोग। तो x यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यूज कर रहा है नोटेशन, a1 a2 ऐसे यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दिस इज ट्रू, इफ a of I इक्वल टू ट्रू, दैट मींस 1, देन प्रिंट 1 2 3 4, मैं 1 2 3 4 यूज करूंगा तो क्या होगा? इसीलिए सिर्फ इंडेक्स को यूज करें यहाँ पे 1 2 कोई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज प्रोसेस सॉल्यूशन एंड कांस्टेंट कैंडिडेट फॉर द ऑल सबसेट क्या हो रहा है? एक बार क्या हो रहा है? ट्रू,
that means C of 0 is true and C of 1 equal to false. That means left is true, then left side is 1 and right side is false, and incandical 2, that means 2 possibilities. तो ये हो गया तुम्हारा code of all subsets. जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं दिखाऊंगा कैसे हो रहा है. Okay. EJ solution. EJ solution क्या था? A के इनपुट k means k equal to initially 0. Array and input is 3. मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ? 1 2 3 ले रहा हूँ. सेट के अंदर क्या है? 1 1 2. ये सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन क्या है? If k equal to 3, that means input, then return 1, that means return true. Then construct candidate or process solution. The parameter मैं नहीं लिख रहा. ठीक है. For I equal to 1, I less than k, less than equal to k, less than equal to k क्यों? क्योंकि ना k total depth I plus plus, यहाँ पे n भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. If a of I equal to 1, print I. And construct candidate C of 0 equal to 1, E of 1 equal to 0. 0 means false. And in candidates मैं n से लिख रहा हूँ. In candidate equal to 2. ये 3 फंक्शन का डेफिनेशन और ये मेन पार्ट है. तो इसको मैं ड्राई रन करके दिखा हूँ. So backtrack E 0 3. So first line in C of max candidate, C of 2, the max candidate value में ले रहा हूँ C of 2, C0 and C1. In n candidates, integer type variables in candidates and in I. Okay. Initially, if is a solution, no, because 0 not equal to 3, so it is not a solution. Then process solution will be executed. Process solution not executed. Else part में क्या होगा? K equal to k plus 1. So k equal to k plus 1. K equal to k plus 1. Then construct candidate will be executed. So k equal to k plus 1 means k equal to 1. K equal to 1. And C0 equal to construct candidate का definition क्या था? C0 equal to 1 and C1 equal to 0 and n candidate equal to यहाँ पे लिखा हुआ है C0 equal to 1, C1 equal to 0 and n candidate equal to 2. Then for I equal to 0, I less than n candidate, I plus plus. n candidate का value कितना है? 2. So I equal to 0, तो I का कितना होगा? एक बार होगा I equal to 0, I equal to 0 and I equal to 1. I equal to 1. अच्छा. दो एक बार इंक्लूड करूंगा, एक बार एक्सक्लूड करूंगा. तो इंक्लूड कैसे हो रहा है? देखो इंक्लूड क्या होगा, अगर यहाँ पे जो ये 1 2 3 पे x1 x2 x3 ले रहा था, मैं यहाँ पे क्या लूंगा? a1 a2 एंड a3. ठीक है. सो ये ऑफ ये तो फर्स्ट लेवल
k actually label, k equal to 1, so a of k, that means a of 1. तो a of 1 क्या होगा? So a of 1 equal to true, a of 1 equal to true, that means c of 0, देखो तो I का वैल्यू 0 है, लेफ्ट साइड 0 है, c of 0 equal to 1, that means a 1 equal to 1. सेम प्रोसीड्यूर फॉलो हो रहा है यहाँ पे. देन क्या होगा? मेक मूव एंड मेक मूव रन नहीं होगा. बैक ट्रैक ए के का वैल्यू कितना होगा? 1 and 3. बैक ट्रैक ए 1 3 अगेन बैक टू फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, तो क्या हो रहा है? इफ इज ए सॉल्यूशन, नो, बिकॉज 1 नॉट इक्वल टू 3, देन प्रोसेस सॉल्यूशन विल नॉट एग्जीक्यूट. देन k इक्वल टू k plus 1, that means k equal to 2. मतलब सेकंड लेवल बन रहा है. ठीक है, क्या होगा? लेफ्ट राइट I equal to 0 and I equal to 1, I equal to 1. तो ये क्या होगा? a of k means क्या होगा? a of 2 equal to c of 0 and c of 0 means 1, इसीलिए c of 0 equal to 1 and c of 1 equal to 0 लिखेंगे. तो a of 2 equal to 1. ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है? बैक ट्रैक a to 3, 2 not equal to 3, again k equal to 3. ठीक है, फिर से I equal to 0, I equal to 1. ठीक है, so I equal to 0, तो a of 3, a of k means क्या होगा? a of 3 equal to c of 0 means 1, and then backtrack a 3 3. ठीक है, तो इस पोजीशन में आओ. ओके, इजी सॉल्यूशन, यस. देखो अभी देखो 3 and 3 इक्वल हो गया. इजी सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था? इफ k equal to 3, that means 3 equal to 3, return 1 for return 2, then process solution will be executed. process solution में क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है. प्रिंट में क्या हुआ है? for I equal to 1 to k, that means एकदम पूरा ऊपर से स्टार्ट होकर डेप्थ तक आएगा. जो 1 है वो प्रिंट होगा. then प्रिंट क्या होगा? a1 equal to 1, yes, so 1 प्रिंट होगा. फर्स्ट 1 प्रिंट. यहाँ पे इंडेक्स यूज हो रहा है क्योंकि 1 2 3 से कर रहे हैं इसीलिए. ठीक है, एंड देन a2 equal to 1, yes, 2 print 2, a3 equal to 3. ओके, देखो लेफ्ट साइड के लिए हो गया. देन i equal to 0 के लिए तो कंप्लीट हुआ था, i equal to 1 के लिए बाकी था. तो राइट साइड जाऊंगा, तो इसका मतलब बैक हो रहा है. बैक करते हैं तो क्या हो रहा है? ये आपके मतलब फॉर लूप i equal to 0 i equal to 1 means this one. e of k means e of 3, same level. e of 3 equal to c of 1, so c of 1 means false. e of 3 equal to 0 and k equal to again sorry, हाँ, बैकट्रैक a33 क्योंकि थर्ड लेवल पे हो रहा है a33. तो a33 जब हो गया, इजी सॉल्यूशन, यस इजी सॉल्यूशन. प्रोसेस सॉल्यूशन में एग्जीक्यूट. तो प्रोसेस सॉल्यूशन में क्या है? प्रोसेस सॉल्यूशन 1 1 0, सो 1 में 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, 0 नहीं होगा. बैक करके यहाँ पे होगा. i equal to 0 के लिए कंप्लीट हो गया तो i equal to 1 के लिए होगा. देन e of 2 equal to c of 1, that means c of t equal to 0. तो उसके बाद क्या होगा? बैक ट्रैक a to 3. तो बैक ट्रैक a to 3 इजी सॉल्यूशन लो. यहाँ स्टार्ट होगा, फिर से ये होगा i equal to 0. तो वही जो जो किए थे हम लोग स्टेट स्पेस ट्री, वही बन रहा है यहाँ पे. तो यूजिंग दिस कोड यू कैन राइट ए कोड फॉर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. तो लाइन बाय लाइन लिखो. लाइन बाय लाइन लिखने के बाद कोई भी एक लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट करो. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे. समझ में आया? So Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलो बाय.